Hello students, welcome to the next lecture on the differential equation. Today I will explain you how you can find the solutions of the second order differential equations by using Frobenius method. Myself Dr. Hishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the playlist of the ordinary differential equations. As you can see, the last lecture was on the power series methods, ordinary and the singular points, concepts, and many more lecture available in this playlist. Now, whenever you have a second order differential equations, make sure the coefficient must be 1. Then your target is, what is your target? Your target is to find the solution of the equation number 1 in terms of the power series. फाइन, तो वो कैसे निकाल सकते हो आप? फाइन, उसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी एक पॉइंट पे से इस पॉइंट को अगर तो आपने ऑर्डिनरी पॉइंट प्रूव करा, देन यू कैन ऑलवेज अप्लाई दी पावर सीरीज मेथड. And if you prove that the given point is my regular singular point, fine, then you can apply only the Frobenius method. So when the given point is a regular singular point, then only we can apply the Frobenius method. And how you can check about the ordinary and the singular point? तो इसके लिए मैंने ये आपको लेक्चर अप्लाइड करा हुआ 15 एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डिनरी एंड दी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स. फाइन, जैसे ही आपने प्रूफ कर दिया कि कोई भी पॉइंट जो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट है, देन यू कैन अज्यूम द सॉल्यूशन ऑफ द differential equation in the form x raised to power r, where r can be positive, negative, fraction, anything. Fine. I can also write the equation is an x raised to power n plus r, where n varies from 0 to infinity. Fine. I can substitute the value of the y in equation number 1. So for that case, I need to calculate the y prime and y double prime. Y prime is the derivative of the y with respect to x. Y double prime is the derivative of y with respect to x 2 times. I can substitute all these values of the y, y prime and y double prime in equation number 1. You will get the equations and then you can find the value of the ai's. Clear? मैं बार बार कह रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ द y डबल प्राइम मस्ट बी 1. जैसे आप इसमें फिल करोगे, आफ्टर द कैलकुलेशन यू विल गेट वन इक्वेशन एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज द इंडिशियल इक्वेशन. फाइन. और ये इंडिशियल इक्वेशन आपके किस पर्पस के लिए काम आती है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द आर. ए एन तो आप निकाल लोगे, बट द अननोन इज आर. फाइन. तो इसकी इक्वेशन आर की निकालने के लिए दैट इज अ इंडिशियल इक्वेशन. और उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? आर इंटू आर माइनस 1 प्लस ए आर प्लस बी इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए एंड दैट इक्वेशन इज अ वेरी वेरी यूजफुल जब भी आप सीएसआर नेट और गेट के एग्जामिनेशन में होंगे. फाइन. इस फ्रोबनियस मेथड और पावर सीरीज मेथड पे यू कैन सी द पीवाई क्वेश्चन ऑफ द पावर सीरीज मेथड इन द 15 सेकेंड शॉर्टकट ट्रिक्स. फाइन. लेकिन आज का लेक्चर थ्योरी का है, सो आई विल एक्सप्लेन यू इन द डिटेल. Once you can solve this equation, you will get the two different value of the r, r1 and r2. Based on the nature of these r, we can categorize into the three form. Roots are distinct, but the difference are not integers, like r is equal to 0, r is equal to 3 by 2. Clearly say the roots are distinct, लेकिन दोनों का difference कितना है? 3 by 2, which is not integer. Roots are equal, like 0 and 0, 1 and 1 and so on, and the roots are differ by an integer. फाइन. मतलब केस नंबर 1 में ऐसे रूट्स नहीं होने चाहिए. ये भी तो डिफरेंस है ना रूट दोनों, लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1, विच इज द पार्ट विच इज द इंटीजर. फाइन. तो अगर ऐसे रूट आएंगे दैट वी विल कंसिडर इन द थर्ड टाइप और सेकंड टाइप. थर्ड टाइप. फाइन. तो हर केस को अलग अलग डिस्कस करेंगे. टुडे वी विल डिस्कस द केस व्हेन द रूट्स आर नॉट डिफर बाय एन इंटीजर. चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ. सबसे पहले इसका कोफिशिएंट 1 बनाइए. आई कैन डिवाइड इट बाय 9x into 1 minus x on the both side, so that will be y double prime minus 4 divided by 3x and so on. You can compare the differential equation. Px will be minus 4 divided by 3x into 1 minus x. Qx will be 4 divided by 9x into 1 minus x.
Now your target is to check whether the power series method is applicable, fine, or the Frobenius series method applicable. फाइन. पावर सीरीज वो जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, इसके लिए ये कब लगेगा? whenever the point x is equal to 0 is my ordinary point, क्योंकि 0 पे निकालना ना आपको. और फ्रॉबनियस तब लगेगा जब ये आपके पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा. तो कैसे चेक करेंगे? whenever x approaches 0, what is the value of the px? px goes to the infinity, qx goes to the infinity. फाइन. इन दोनों में से कोई अगर एक भी वैल्यू इंफिनिटी पे चली जाए, देन पॉइंट इज कॉल्ड एज द सिंगुलर पॉइंट. अगर सिंगुलर है इसका मतलब पावर सीरीज मेथड तो एप्लीकेबल नहीं होगा. अब इसको रेगुलर कैसे प्रूफ करेंगे? अगेन यू कैन चेक वेदर द लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, x इंटू पी एक्स, एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, एक्स स्क्वायर इंटू क्यू एक्स. अगर ये दोनों वैल्यूज फाइनाइट आ गई, then you can say these are the regular singular point. तो सब्सटीट्यूट करो, इसको x के साथ मल्टीप्लाई करिए, that will be -4/3. x के साथ करोगे that are 0. both are finite, therefore x is equal to 0 is the regular singular point. अगर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू इंफिनिटी आ जाए, then Frobenius method is not applicable. फाइन. तो आपको पता लग गया कि Frobenius method लगाएंगे, then you can take the value of the y. फाइन. सब्सटीट्यूशन कर दो इसमें. पहले सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो. फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी an plus r x raised to power n plus r minus 1, and similarly you can find the second derivative. I can substitute all these values y, y prime, y double prime in equation number 1. क्लियर? ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. सो इट्स 9x, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 9 इज आउटसाइड, समेशन n plus r n plus r minus 1 इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी x ऑफ n plus r minus 1 माइनस 9. अब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर 2 माइनस कैंसिल हो जाएगी. फाइन. सो इफ यू मल्टीप्लाई देम यू विल गेट दीज 4 टर्म्स. अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले करेंगे वैसा ही जैसा हमने पावर सीरीज में करा था. सबसे पहले सभी की पावर को सेम कर दो. फाइन. सभी की पावर में n प्लस आर माइनस 1 कर दो. सभी में सबसे छोटी वैल्यू यही है ना. सभी टर्म आपकी n प्लस आर माइनस 1 होनी चाहिए. तो चेक करो, इसमें तो है, इसमें नहीं लिखा हुआ. तो कैसे बनेगा? यू कैन रिप्लेस n टू बी n माइनस 1. तो जैसे इस पे n की वैल्यू को n माइनस 1 रिप्लेस करोगे तो आपका n प्लस आर माइनस 1 हो जाएगा. यहां ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहां पे भी रिप्लेस कर दो n की वैल्यू को n माइनस 1. तो ये वाली क्वांटिटी और इस क्वांटिटी को पहले कंबाइन कर लो. फाइन. इसमें से समेशन, बाकी पीछे रह गया xn कॉमन है, an कॉमन है, r प्लस n माइनस 1. अंदर वाली क्वांटिटी आप लिख सकते हो 9 इंटू n माइनस आर एंड सो ऑन. जैसे आप इसमें रिप्लेस करोगे तो यहां पे भी रिप्लेस हो जाएगा. तो ये कितना हो गया? n को n माइनस 1 में रिप्लेस करा तो दैट इज अ समेशन. फाइन. तो n की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो गई? 1 से. तो यू कैन सी n start from the 1, replace n to be the n minus 1, replace n to be the n minus 1, replace n to be the n minus 1. Similarly for the last case. Fine. अब आप देखो सभी की पावर सेम हो गई. फाइन. अब आप लेकिन लिमिट्स देखो, ये 0 है, ये 1 है. तो इसमें एक बार n की वैल्यू 0 फिल कर दो. तो n की वैल्यू 0 फिल करो, कितना हो जाएगा? 9 r माइनस 1 a ऑफ 0 x रेज टू पावर r माइनस 1 प्लस आगे फिर 1 फिल करना होगा तो उसको मैं समेशन की फॉर्म में लिख देता हूं. बाकी सेम है सच. मतलब इस लिमिट को 0 से 1 में रिप्लेस कर देना आपको. फाइन. तो जैसे रिप्लेस करोगे ये पहली क्वांटिटी आ गई. फाइन. और बाकी सबके कोफिशिएंट x की पावर n माइनस आर मैंने कंबाइन कर लिया. इसमें से क्या आएगा? माइनस ऑफ 12r. तो वो मैंने माइनस 12r यहां लिख दिया. फाइन. नाउ यू कैन इक्वेट द कोफिशिएंट्स. तो क्या हो गया? 9r, ये x की पावर r, ये भी 0 है ना. तो दोनों ये वैल्यू भी आपकी 0 हो गई और ये इनसाइड ब्रैकेट दोनों 0 आ गए. यहां से आप इक्वेशन की वैल्यू निकालो. 3 से डिवाइड कर दो पहले. 3r r माइनस 1 माइनस 4r इज इक्वल टू 0. फाइन. एक r कॉमन ले लो. सो दैट विल बी 3r माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0. r विल बी 0 7/3.
फाइन, और यहां से ए एन की वैल्यू निकाल लो, फाइन, और ए एन माइनस वन राइट साइड पे ले जाओ, फाइन, ये ए एन माइनस वन इन दोनों को राइट साइड पे ले जाओ, ए एन कॉमन ले लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एन। क्लियर? अब आप कहोगे सर अगर ये कंपटीशन एग्जाम में आया तो इतना बड़ा तो कैसे करेंगे हम सॉल्व? फाइन, तो उसके लिए मैंने आपको एक स्टार्टिंग में इंडिशियल इक्वेशन लिखवाई थी, आर माइनस वन प्लस ए आर प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ये लिखवाई थी ना आपको। फाइन, वो इक्वेशन ये बनेगी, इसलिए मैंने कहा आपको कि और आप इस लेक्चर को सुनिए, पी वाई क्वेश्चन ऑफ द पावर सीरीज मेथड। फाइन, आपको जितना अभी तक करा करने की जरूरत नहीं है। ये वैल्यू ऑफ आर के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने बता दी। इस ए एन को डायरेक्टली आप लिख सकते हो बाय यूजिंग माय दिस शॉर्टकट ट्रिक्स जो इस लेक्चर में एक्सप्लेन करी हुई है मैंने। अगर आप CSR नेट और गेट क्रैक करना चाहते हो तो ये वो लास्ट 15 सेकंड का लेक्चर सुन लेना, आप ये इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हो और ये वैल्यू ऑफ आर डायरेक्टली निकाल सकते हो। फाइन, अब क्या करना है आपको, इस आर की वैल्यू पे, आर इज 0 एंड 7/3 पे इस ए एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा रूट्स आर डिस्टिंक्ट और डिफरेंस आपके पास इंटीजर नहीं है, बिकॉज व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज 7/3 विच इज नॉट एन इंटीजर। तो आपके सोल्यूशन हो गए y1 एंड y2, आर की वैल्यू फिल कर दो n प्लस आर इज माई 0 और n प्लस 7/3। तो जैसे ही आपका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा y1 प्लस y2। अब आपका क्वेश्चन है कि y1 में और y2 में an कैसे निकालना है। आई कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू इन द गिवन इक्वेशन। तो क्या हो गया, an जैसे r की वैल्यू 0 ही तो ऊपर कितना हो गया 9 n माइनस 1 n माइनस 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3n माइनस 7। सिमिलरली 7/3 फिल करेंगे, यू विल गेट द इक्वेशंस एज दिस नंबर्स। क्लियर? अब आप सब्स्टिट्यूशन कर दो, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट है, एक बार n की वैल्यू 1 ले लो तो कितना आंसर आ गया a1। n की वैल्यू 1 लोगे तो 0 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 फाइन इंटू a0 दैट विल बी a0 डिवाइडेड बाय 3। अब n की वैल्यू 2 ले लो, n की 2 पे ये a2 फिर से 0 फाइन 3 2 या 6 माइनस 7 इज a minus 1 of a1, so that will be 2 divided by 3 of a1। इस a1 की वैल्यू फिल कर दो, so that is a 2 divided by 9 of a0। Similarly you can substitute n is equal to 3, fine, so you will get the values are a3 7/9 a2 फाइन, इसमें वैल्यू फिल कर देते हैं, you will get the result is, और चाहे कैंसिल कर दो चाहे आपके पास इन द सीक्वेंस फॉर्म में लिख दो 1 4 7 3 6 9। सिमिलरली यहां पे भी व्हेन यू सब्स्टिट्यूट n इज माई 1, a1 कितना हो जाएगा 9 7/3 4/3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 9, n इज 1 सो दैट विल बी 10 डिवाइडेड बाय 3, तो ये ऊपर 9 से कट जाएगा, सो दैट इनटू a of 0। Similarly you can find the value of a2 and you can get the 4/5 and then so substitute the values in the given equations, because इसमें r 0 था और इसमें क्या था x की पावर r बाहर ले लिया, समेशन an x की पावर n, यहाँ पे a0 की वैल्यू a1 a2 a3 एंड so on। तो सारी वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ a0, यहाँ पे भी दोनों तरफ से वैल्यू फिल कर दो, यू विल गेट a0 कॉमन ले लिया, उसको मैंने c1 का नाम ले लिया। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे फिल कर दोगे, यू विल गेट दी c2 इज माई आर्बिट्री कांस्टेंट, hence the complete solution is my y1 plus y2 is the required solution। फाइन, मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में हो आप इस पूरे क्वेश्चन को 15 सेकेंड टाइम पीरियड में सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग माय दिस शॉर्टकट ट्रिक्स। और अदरवाइज क्या करो, आप इस लेक्चर को फिर भी सुनो, फाइन, इससे शॉर्टकट ट्रिक सीख के आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो वेदर इट इज ट्रू और रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। पहले कोफिशिएंट को 1 बना लो, फाइन, और किस पॉइंट पे देखो ये वैल्यू आपकी इंफिनिटी कब जाएगी, एट x इज इक्वल टू 0, फाइन, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 आपके पास क्या हो गया, सिंगुलर पॉइंट, फाइन। उसके बाद क्या करना है आपको, x इंटू पी एक्स एंड एक्स स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, इसकी लिमिट देखो कितनी आएगी, एज x अप्रोचेस 0, सो दैट विल बी हाफ एंड दैट विल बी 0, फाइन।
तो अगर आप इंडिशियल इक्वेशन लिखोगे प्लस ए आर, तो ए मतलब यही वैल्यू आएगी आपके पास, प्लस बी इज माई जीरो। तो आप यहां से आर की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो आर कॉमन आ जाएगा, आर प्लस हाफ इज इक्वल टू आर माइनस हाफ इज इक्वल टू जीरो। तो आप देखो अभी मैं आपको पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करूंगा, अदरवाइज आप देखो शॉर्टकट ट्रिक से मैंने पहले ही बता दी ना कि आर इतना आना चाहिए, ये आपकी इंडिशियल इक्वेशन बनेगी। क्लियर? स्टार्ट करते हैं वाई से, डेरिवेटिव लिया आपने और इक्वेशन में फिल कर दो आप। फाइन, इसको 4 एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n प्लस आर माइनस वन ए एन एक्स रेज टू पावर n प्लस आर माइनस वन हो जाएगा। बाकी सब कांस्टेंट वैल्यू सेम है। x की पावर सबसे स्मॉलेस्ट कहां पे है, n प्लस आर माइनस वन, तो यहां पे रिप्लेस करना होगा। यहां पे क्या करेंगे, n को रिप्लेस कर देंगे n माइनस वन से। तो ये लिमिट किस में चेंज हो जाएगी आपकी, लिमिट स्टार्ट फ्रॉम दी वन टू इंफिनिटी a ऑफ n माइनस वन एक्स की पावर n प्लस आर माइनस वन। ये क्लियर है ना लिमिट क्यों चेंज हुई, बिकॉज जैसे आप यहाँ पे n की जगह पे n माइनस वन फिल करोगे तो ये बन गई ना समेशन आपकी। तो n कहां से स्टार्ट हो गया, वन से इंफिनिटी। और इन दोनों में क्या करो आप, समेशन तो बाहर ही है आपके पास और x की पावर n प्लस आर माइनस वन कॉमन ले लिया आपने, तो यू विल गेट एक्सप्रेशन। फाइन, अब आप लिमिट सेट कर लो, ये वन है ये जीरो है, तो इसको एक बार खोल दो, पहले जीरो फिल करो, n की वैल्यू जीरो, सो दैट विल बी 4r माइनस वन प्लस 2r फाइन इंटू ए जीरो फाइन x की पावर r माइनस वन प्लस समेशन n वेरीज फ्रॉम वन टू इंफिनिटी, ये पूरा एक्सप्रेशन यहां पे सेम रह गया, प्लस ये वाला एक्सप्रेशन सेम रह गया। इन दोनों में से समेशन n की पावर वन टू इंफिनिटी कॉमन ले लो एंड यू विल गेट दी एक्सप्रेशन। फाइन, अब आप ये आइडेंटिकल इक्वेशन है, ये वैल्यू भी जीरो आएगी और हर कोफिशिएंट के टर्म्स आपके पास जीरो। क्लियर? अब देखो ये वही बन गई ना, इसको टू से, बिकॉज ए नॉट इज माई नॉन जीरो ऑलवेज, तो इसको टू से डिवाइड कर दो, सो टू आर माइनस वन प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, तो एक आर कॉमन ले लिया मैंने, सो टू आर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। देखो सेम वैल्यू आई ना आपकी आर की, जीरो एंड हाफ, जो मैंने आपको पहले 5 सेकंड में निकाल दी थी। फाइन, और यहां से ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए एन विल बी माइनस ए एन माइनस वन, इसमें से एन प्लस आर कॉमन ले लो, टू इंटू एन प्लस आर इज कॉमन, तो अंदर क्या रह गया, टू एन प्लस टू आर माइनस ऑफ टू प्लस वन, माइनस ऑफ टू प्लस वन इज टू एन प्लस टू आर माइनस वन। क्लियर? नाउ क्लियरली से द रूट्स आर माई डिस्टिंक्ट। फाइन, और दोनों का डिफरेंस क्या है, इंटीजर है आपके पास, डिफरेंस इज नॉट इंटीजर, सो दैट मीन्स दिस द टूडेज लेक्चर ऑफ द टाइप 1। तो आपके सॉल्यूशंस क्या हो गए, सॉल्यूशंस क्या हो गया आपके, y1 इज इक्वल टू समेशन ए एन एक्स की पावर n प्लस आर एंड y2 आपके पास क्या हो जाएगा, समेशन ए एन एक्स की पावर n प्लस आर। फाइन, सो आपका टारगेट है y1 एंड y2 को निकालना। क्लियर? तो वो कैसे निकालेंगे, आई कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ द r इनटू द फॉर्मूला ऑफ द ए एन। दो केस बना लेते हैं, r की वैल्यू जीरो फिल कर दो पहले, तो ए एन कितना हो गया, माइनस वन ओवर टू एन माइनस वन इंटू ए एन माइनस वन फॉर ऑल एन विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। सिमिलरली आर की वैल्यू हाफ फिल करके एंड सो ऑन। आर की वैल्यू, एन की वैल्यू वन से स्टार्ट है, so whenever n is 1, so you will get the a1 will be minus 1 2 into a naught. Whenever n is equal to 2, a2 is minus 1, ये कितना हो जाएगा 4 minus 1 3, that is 4 into 3 रहने दो। फाइन, तो जैसे a0 की वैल्यू फिल करूंगा दैट विल बी माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आई इक्वल एज अ 4 फैक्टोरियल, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल। फाइन, एंड सिमिलरली n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। जैसे आप देखो यहाँ पे a0 की वैल्यू, a1 की वैल्यू फिल करो यहाँ पे,
तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 फैक्टोरियल ऑफ ए नॉट। A2 की वैल्यू फिल करो, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो -1/6 फैक्टोरियल ऑफ ए नॉट एंड सो ऑन। Similarly, you can substitute n is equal to 1, n is equal to 2 and you will get the 3 factorial, 5 factorial and 7 factorial. क्लियर? तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, R0 था, A0, A1x एंड सो ऑन, यहाँ पे R की वैल्यू हाफ थी। I can substitute the value of the A0, A1, A2, A3 corresponding to R is equal to 0. This is A1, A2, A3, A4 and so on. सभी में से A0 कॉमन आ जाएगा इस केस में, फाइन, एंड देन यू विल गेट S, इसमें A0 कॉमन ले लो, so that will be 1 minus x over 2 factorial, x square over 4 factorial and so on. ये कोई सीरीज होती है, कोसाइन की सीरीज होती है ना, व्हाट इज द cos ऑफ a, 1 माइनस a स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, a4 ओवर 4 फैक्टोरियल, तो 2 के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, 4 के ऊपर 4, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, इसको स्क्वायर में बना ले, आप यहीं पे भी छोड़ सकते हो आप, ठीक है, लेकिन अगर आप बना पाओ दैट्स वेरी गुड। तो आप देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos ऑफ रूट एक्स। सिमिलरली आप राइट साइड पे देखोगे तो वो साइन की सीरीज बन जाएगी, एंड हेंस द फाइनल सॉल्यूशन विल बी y1 प्लस y2। चलिए, सॉल्व द बेसल इक्वेशन। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फाइन, एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, फाइन, k is any value but the 2k is not an integer। चलिए पहले कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। फाइन, क्लियरली से whenever x approaches 0 the value of the px will goes to the infinity, therefore x is equal to 0 is my singular point। फाइन, अब आप चेक कर लेते हैं x इंटू पी एक्स एज वेल एज एक्स स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, तो x इंटू पी एक्स कितना हो जाएगा, 1 के ऊपर अप्रोच करेगा, and x square is my goes to the minus of k square as limit x approaches 0। Fine, तो therefore x is equal to 0 is the regular singular point। क्या आप लिख सकते हो इंडिशियल इक्वेशन, r into r minus 1 plus a into minus k square। फाइन, तो सॉल्व कर लो, कितना आ गया, r square minus k square is equal to 0। तो r की वैल्यू क्या क्या आ गई आपके पास, R is my प्लस माइनस k। फाइन, और दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 2k, एंड इट इज गिवन दैट दे आर माई नॉट इंटरैक्ट। क्लियर? चलिए, तो आपका देखो यही आंसर आएगा इंडिशियल इक्वेशन जब हम निकालेंगे भी। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। अच्छा बच्चों, एक बार नोट कर लो इसको, एक पॉइंट, कई बार क्या होता है एग्जामिनेशन में, ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर की जगह पे एन स्क्वायर लिखा होता है। फाइन, बाकी सारी इक्वेशन ऐसा ही होगी आपकी। फाइन, अगर यहाँ पे n स्टेटमेंट में गिवन दे दिया तो यहाँ पे लिमिट फिर n नहीं होगी, यहाँ पे कोई और इंडेक्स ले लेना आप भी, मतलब तब आप उसको k ले लेना, k वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी a k x की पावर k प्लस 1। फाइन, अगर आपको n दिया हुआ है तो सेम इंडेक्स ना यूज करो आप, ठीक है, सबस्क्रिप्ट चेंज कर देना आप भी। चलिए इसका डेरिवेटिव निकाल के इस दोनों इक्वेशन में फिल करते हैं आप भी। तो इसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो n प्लस आर विल बी देयर। फाइन, अब आप सबको n माइनस, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है आपकी, सबकी स्मॉलेस्ट वैल्यू किस में कन्वर्ट करेंगे सबको आप, n प्लस आर प्लस 2 है ना, तो सबको पहले तो इसकी ये कंबाइन कर दो, n प्लस एक्स की पावर n प्लस आर कंबाइन कर दो। तो इसको n प्लस आर में कैसे बनाएंगे, सबसे स्मॉलेस्ट तो n प्लस आर है ना, पिछले केस में क्या होता था n प्लस आर माइनस 1 सबसे स्मॉलेस्ट था, लेकिन इसमें n प्लस आर स्मॉलेस्ट है, तो कैसे बनाएंगे, आई कैन रिप्लेस n टू बी n माइनस 2। जैसे मैं इसमें n की जगह पे n माइनस 2 लिखूंगा तो 2 और 2 कैंसिल होगा ना, तो ये लिमिट किस में चेंज हो जाएगी, n माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो n स्टार्ट फ्रॉम द 2 टू इंफिनिटी, ये an आपका an माइनस 2 बन गया। फाइन, और बाकी में सबने x की पावर n प्लस आर कॉमन था, मैंने ले लिया। अब दोनों की लिमिट अलग अलग है। फाइन, अब आप ओपन करो इसको भी, 2 तक लेके जाना, पहले 0 फिल करो, n की वैल्यू 0, r माइनस 1 प्लस आर माइनस के स्क्वायर इंटू
A0 x की पावर r, फिर 1 फिल करते हैं, 1 प्लस r, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, r प्लस 1 प्लस r माइनस के स्क्वायर इंटू A1 x की पावर 1 प्लस r प्लस, अब 2 आ जाएगा, इसको समेशन की फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये वाली पूरी वैल्यू फाइन प्लस a ऑफ n माइनस 2, और यहां पे मैंने x की पावर n प्लस r कॉमन ले ली। क्लियर? नाउ ईच टर्म विल बी जीरो, कोफिशिएंट ये आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, फाइन, दिस क्वांटिटी विल बी जीरो, फाइन, और ये पूरी वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट से। जैसे इसको सॉल्व करोगे, देखो आपकी r की वैल्यू कितनी आ गई, k एंड माइनस के, आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ही बनेगा ना, इसके ओपन करोगे ब्रैकेट, एक r से r कट जाएगा, आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, फाइन, r की वैल्यू k और माइनस के यहां पे फिल करो, तो आपके पास a1 विल बी जीरो, क्योंकि r की वैल्यू ये कोफिशिएंट नॉन जीरो आ गया, सो a1 विल बी जीरो, और यहां से आप इसकी an की वैल्यू निकाल लिया। क्लियर? तो आप देख सकते हो ये रूट्स आर डिस्टिंक्ट है और दोनों का डिफरेंस 2k है, एंड 2k इज माय नॉन इंटीजर, ये स्टेटमेंट में गिवन था, फाइन, तो आपके दो सॉल्यूशन आएंगे, फाइन, तो दिस आर नॉट डिफर बाय एन इंटीजर्स। चलिए, तो दोनों की वैल्यू आप k की वैल्यू k, r की वैल्यू k एंड माइनस के फिल कर दो, तो निकालो, n की वैल्यू अब आपकी कहां से स्टार्ट है, 2 से, फाइन, तो n की वैल्यू पहले 2 फिल करो, तो a2 विच इज -1 over 2, 2 plus 2k into a0, फाइन, एंड सॉल्व, क्योंकि a1 आपका जीरो है, सो a3 विल बी जीरो, a5 विल बी जीरो, a7 विल बी जीरो, एंड सो ऑन, फाइन, इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, -1 over 4, 1 plus k of a0, इसमें से भी 2 कॉमन निकालोगे तो 1 over 8, 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख देता हूं, फाइन, इंटू 2 प्लस के, a2 की वैल्यू यहां लिखते हैं 1/4, 1/4 को 2 की पावर 2, 1 प्लस के ऑफ a0, फाइन, तो जैसे करोगे ये 2 की पावर क्या हो गया 5, 1 प्लस के, 2 प्लस के, एंड सो ऑन। सिमिलरली यहां पे भी n की वैल्यू 2 फिल कर दो, n की 3, एंड सो ऑन, यू विल गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस, बिकॉज a1 एंड 0, a3 विल बी 0, एंड सो ऑन। सब्स्टिट्यूट कर दो इसकी वैल्यू गिवन सॉल्यूशन में, यू विल गेट एक्स के a0 x की पावर माइनस के, यहाँ पे a1 तो जीरो ही आपका, a3 इज जीरो, a1 इज जीरो, a5 जीरो, a2 की वैल्यू ये है आपके पास, a4 की वैल्यू ये है आपके पास, यू कैन सब्स्टिट्यूट दैट एंड टेक द कॉमन, a0 बाहर हो जाएगा, इस a0 को मैं c1 का नाम ले रहा हूं, यहां से भी a0 बाहर आएगा, a1 विल बी जीरो, a3 विल बी जीरो, उसको मैं नया नाम ले लेता हूं, c2 इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सो देयरफॉर the complete solution will be y1 plus y2 is the required solution of the problem. Clear students? मैं फिर कह रहा हूं, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फाइन, इसको पूरे लेंथी मेथड से सॉल्व करिए, और जो शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने इस लेक्चर में दी आपको CSR नेट और गेट के लिए, आप उससे भी देखो तो आपका आंसर वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। Let me know if you have any doubt. In the next lecture we will see the type 2 when what will happen when the roots are equal. Till then, you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck, students. Happy learning.